Hello my dear student, welcome to our maths class. My dear student, in our previous class you have learned how to solve an equation by reducing it to a simpler form, right? And reducing equation means what? Reducing equation means rewrite the equation in a simpler form. Sometimes certain mathematical statements are not in a linear form, but we can put that equation in a linear form by performing some mathematical operation on them. So today's our topic is equation reducible to the linear form. So let's start today's class from exercise 2.6. Let's see the solution of this equation, students. In this equation, left hand side is not in the form of linear equation, right? Here we can put this equation in the form of linear equation by performing some mathematical operations here. Okay, let's see how we'll solve this equation. 8x minus 3 by 3x, okay, multiplying both sides by 3x. Multiplying both sides by 3x, right? देखिए 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा. It will become 8x minus 3 is equals to 2 3s are 6x. Okay? यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट आया, this is a linear equation, but this mathematical statement can be obtained by cross multiplication also. Let's see what is cross multiplication. Last class में मैंने आपको बताया था cross multiplication means multiplying the numerator of one side by the denominator of other side. Okay, so multiplying like this. Similarly, numerator of one side by the denominator of other side. Okay, so क्या होगा? 8x minus 3 into 1 is equals to 2 into 3x. So ये क्या हो जाएगी? 8x minus 3 is equals to 2 3s are 6. देखिए हमें सेम मैथमेटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे मिला है. इस तरह भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन. 8x 6x को राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए. ओके, बाय ट्रांसपोजिंग लाइक टर्म टू सेम साइड. यहाँ पे -3 है, इस तरफ जाके +3 हो जाएगी. 8x में से 6x माइनस हो गया. दिस इज 2x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3/2. This is the solution of this given equation. Right, student? Now let's see the next question. Next question is z by z plus 15 is equals to 4/9. Z by z plus 15 is equals to 4/9. Solution. Again by cross multiplication. Cross multiply करेंगे. Okay? By cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. z इंटू 9, z को 9 से मल्टीप्लाई किया. न्यूमरेटर ऑफ दिस साइड मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर ऑफ अनदर साइड. सिमिलरली 4 इंटू z प्लस 15. क्लियर? नाउ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल ओपन द ब्रैकेट. सी z इंटू 9, 9z, 4 इंटू z, 4z plus 15 into 4, 60. 15 4s are 60. Clear? See the next step. This is 9z transposing 4z to left hand side is equals to 60. Clear? 9z minus 4z is 5z is equals to 60 and z is equals to 60/5. 5 से डिवाइड कीजिए. 5 1s are 5, 5 2s are 10. Therefore z is equals to 12. Okay, z is equals to 12 is the given solution for the given equation. Now we'll see the next question. Question number 4 is 3y plus 4 by
2 minus 6y is equals to minus 2 by 5. See, again the same method, by using same method, by cross multiplication. क्लियर? देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 को 3y प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? देन -2 2 minus 6y in bracket 2 minus 6y. Now multiply 5 into 3 15y. जैसे कि मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होती है. 5 4 20 is equals to -2 into 2 minus 4 minus into minus plus 2 6 12y. Clear? Next step is ट्रांसपोजिंग लाइक टर्म 15y के साथ 12y को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं. सिमिलरली -4 20 को राइट हैंड साइड ले जाइए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगी. यहाँ पे 12 प्लस में थी, यहाँ आकर माइनस हो गई. क्लियर? अब इसे सॉल्व कीजिए. 15 minus 12 इज 3y इज इक्वल्स टू -4 -20, दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज बोथ आर इन माइनस, सो इट विल बिकम -24. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज 3y is equals to -24. So this is y is equals to -24 by 3. So y is equals to 3 8s are 24. So the answer is -8. The solution for this given equation is -8. Y equals to -8. Let's see the next question. Question number 5. Question number 5 is 7y plus 4 upon y plus 2 is equals to -4 upon 3. Solution by cross multiplication. By cross multiplication, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. दिस ये न्यूमरेटर है, इससे मल्टीप्लाई होगी डिनोमिनेटर अदर साइड के डिनोमिनेटर से. दिस इज 7y प्लस 4 इज इक्वल्स टू अगेन -4 मल्टीप्लाइड टू y प्लस 2. क्लियर? नाउ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल ओपन द ब्रैकेट. मल्टीप्लाई कीजिए. 3 7s 21 y प्लस है प्लस 3 4s 12 is equals to -4 into y -4y minus into plus -4 2s 8. Clear? Next step is transposing like term. So this is 21y plus 4y is equals to -8 प्लस 12 है, राइट हैंड साइड में जाएगी तो -12 हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन राइट स्टेप्स ऑल्सो हेयर. ठीक है, आप यहाँ पे स्टेप्स भी लिख सकते हैं. बाय ट्रांसपोजिंग आप लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग दिस टू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं. ओके 21y प्लस 4y इज 25y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कीजिए बिकॉज बोथ आर in minus, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, so we'll add them. So -12 plus 8 is -20. Then y is equals to again transpose 25 to left right hand side. Here 25 जो है मल्टीप्लाई में है, so it will be यहाँ आकर ये डिवाइड में हो जाएगी. Clear? Now सब y is equals to divided 5 5s 25 5 4s 20. 5 बचे 25 5 चौक 20. So your answer is -4 by 5. Hence we can say the solution for the given equation is y equals to -4 by 5.
सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे ज़रूर आपको समझ में आ गए होंगे। इस एक्सरसाइज में दो अलग तरह के क्वेश्चंस गिवन थे। अभी इससे पहले हमने जो किया था वैसे क्वेश्चंस भी गिवन थे, अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी गिवन है। सो लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस वर्ड्स प्रॉब्लम। हमें यहाँ पे इक्वेशन किस तरह बनाना है हम उसे सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5. 8 years from now, the ratio of their ages will be 5:6. Find their present ages. अनु और राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हमने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। आज हम फिर से ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एज रिलेटेड क्वेश्चन है। सो लेट्स सी हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट अनुज प्रेजेंट एज बी 4x। क्लियर? ओके, माना हिंदी में लिखेंगे अनु की प्रेजेंट मीन्स वर्तमान आयु क्या है? 4x वर्ष है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एंड राज present age be 5x years, right? राज की वर्तमान आयु कितनी है? 5x वर्ष है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी स्टेटमेंट है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे। क्लियर? अब इसके बाद आपको जो कंडीशन गिवन है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, प्रश्नानुसार आपसे कहा गया है आफ्टर 8 years। आफ्टर 8 years मीन्स 8 साल के बाद। ओके, बाद इट मीन्स यू हैव टू ऐड। क्लियर? एज क्या होगा? 8 साल के बाद एज बढ़ जाएगी। अगर आज 4x है तो 8 years बाद कितनी हो जाएगी? 4x plus 8। सिमिलरली 5x है तो 5x plus 8। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आज अगर 4 years के हैं तो 8 years बाद कितने हो जाएंगे? प्लस 8 करना है, 12 years के हो जाएंगे, है ना? तो सिमिलरली विल डू हियर। देखिए, आफ्टर 8 years अनुज एज, अनुज एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज क्या है? 4x। तो आफ्टर 8 years उसका एज क्या हो जाएगा? 4x plus 8। अनु की आयु 4x plus 8, आप इसी को ले लेंगे। क्लियर? एंड राज एज राज की आयु कितनी हो जाएगी? 5x plus 8 years। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए कि इस कंडीशन को लेकर आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट, आपका जो इक्वेशन है वो किस तरह बनता है। ओके, से इसके बाद आपको कंडीशन में गिवन है कि अनु की एज और राज की एज, इन दोनों के एज का जो रेशियो है आफ्टर 8 years, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। क्लियर? सो आफ्टर 8 years व्हाट अनु की एज क्या है? 4x plus 8 और राज की एज क्या है? 5x plus 8। दोनों की रेशियो कितनी गिवन है आपको? यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है 5:6। Clear? So how will write
4x प्लस 8 इज टू, जो रेशियो गिवन है उसे हम इस तरह लिखते हैं डिवाइड के फॉर्म में 5/6, राइट? ओके, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल हो गया। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व करना सीखा था। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 4x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5x प्लस 8। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर से 6 इंटू 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 5 इंटू 5x प्लस 8। नाउ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विल ओपन द ब्रैकेट, 6 4 जा 24x, 6 8 जा 48, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट स्टेप। ट्रांसपोज करेंगे, लाइक टर्म को एक तरफ लेकर आएंगे, वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ और कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ। यहाँ पे 48 है, 40 को हम यहाँ ले आते हैं, 48 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 25 है, 25x, 24 को उस तरफ ले जाइए, माइनस 24x, राइट? नेक्स्ट स्टेप, 48 माइनस 40, दिस इज 8 and this is 25x minus 24x, this is x. Therefore, x is equals to 8. Right? Clear? Now, the question is, what is their present age? What is Anu's present age and what is Raj's present age? So, Anu's present age is, hence, Anu's present age is 4x. So 4x, this is 4 into 8, 32 years. Clear, students? And Raj's present age will be Raj's present age is 5x, that is 5 into 8, 40 years. 5 8s are 40. Clear? हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, अतः अनु की वर्तमान आयु 4x इज इक्वल टू 4, 4 गुणा 8, 4 अठे 32 वर्ष, और राज की वर्तमान आयु 5x दैट इज इक्वल्स टू 5 गुणा 8 इक्वल्स टू 5 अठे 40 वर्ष। Clear, students? Now we'll see the next question. This is the last question. The question is, the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8. If the numerator is increased by 17, okay, यहाँ पे ध्यान दीजिए keywords के ऊपर, increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2. Find the rational number. एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। Let's see the solution of this question. क्वेश्चन में कहा गया है, you have to find a rational number. Okay, what is rational number? Rational number, a number which can be written in the form of p by q, where q is not equals to 0. Right? हमने पढ़ा था। देखिए बच्चों, कंडीशन जो गिवन है, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन इट इज गिवन दैट कि जो डिनोमिनेटर है, ओके, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 अधिक है, इज ग्रेटर देन 8. Okay, denominator is 8 greater than its numerator. Clear? So, अगर हम मान लेते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो x है, this is numerator and this is denominator, right? न्यूमरेटर जो है वो x है, तो as per given condition उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? x plus 8, न्यूमरेटर से 8 अधिक, greater than 8, greater than means add, right? तो यहां पे हम कंसिडर करते हैं, let the numerator be x.
माना अंश x है. Clear? Then the denominator is denominator be x plus 8. क्लियर? तो उसका अंश हर क्या होगा? राइट? क्लियर? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपको नेक्स्ट कंडीशन क्या गिवन है? नेक्स्ट कंडीशन इज दैट कि अगर हम न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज करते हैं, सो व्हाट इज योर न्यूमरेटर हियर? यहाँ पे आपका परिमेय संख्या क्या होगा? x by x plus 8. दिस इज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, राइट? तो कंडीशन में क्या कहा गया है? अगर हम न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 डिक्रीज करते हैं, तो डिनोमिनेटर क्या है? x plus 8, इसमें 1 डिक्रीज कर देते हैं. डिक्रीज करना मीन्स घटा देना, इंक्रीज करना मीन्स ऐड कर देना, बढ़ा देना, राइट? सो व्हाट विल बी योर रैशनल नंबर? तो आपका रैशनल नंबर क्या बन जाता है? एज पर क्वेश्चन इट विल बिकम 3/2. Clear? So see, as per question, x plus 17 by x plus 8 minus 1. ये आपका कंडीशन जो गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपका जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा वो इस तरह बनेगा. क्लियर? अब हम इसे सॉल्व करते हैं. x plus 17 by x plus 8 minus 1, that is x plus 7 is equals to 3/2. क्लियर? इस टाइप के इक्वेशन से आप ऑलरेडी नोन है, आपको पता है इसे कैसे सॉल्व करना है. लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. फर्स्ट स्टेप इज बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पुट द इक्वेशन इन लीनियर फॉर्म. ओके, सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. दिस इज 2 into x plus 17 and this is 3 into x plus 7, right? Now by using distributive property open the brackets. So distributive property use कीजिए. 2 into x plus, बीच में प्लस है, so plus 2 into 17, 17 2 is 34, then 3 into x, 3x plus 3 7 is 21. Clear? See, next step. 2x को उस तरफ ट्रांसपोज कीजिए एंड 21 को यहाँ पे कीजिए. देखिए, दिस विल बिकम 34 minus 21 is equals to 3x minus 2x. So this is 3, 13 and 3x minus 2x is x. Therefore, x is equals to 13. And what is x here? X is numerator. Okay, therefore x is numerator, then what? Therefore the numerator is 13 and the denominator is x plus 8, that is 13 plus 8, 21. Clear? And what will be your rational number now? आपका rational number क्या होगा? The required rational number is, यहाँ से लिखते हैं, the required rational number is 13/21. क्लियर? अतः हम कह सकते हैं कि हमें जो परिमेय संख्या यहाँ पे ज्ञात करनी थी वो क्या है? 13/21. इसका अंश क्या है? 13, 13 और इसका हर क्या है? x plus 8, 13 plus 8, that is 21. क्लियर स्टूडेंट? आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. एक्सरसाइज 2.6 इज अ वेरी इजी एक्सरसाइज. आप इसको
घर पे ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपका होम असाइनमेंट के लिए है। देखिए आपका होम असाइनमेंट का क्वेश्चन क्या है। अभ्यास प्रश्न प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो आपको मैं देने जा रही हूँ वो है द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7. 4 years from now, the ratio of their ages will be 3:4. Find their present ages. हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था वो क्वेश्चन सेम पैटर्न की क्वेश्चन थे, सेम कंडीशन था। वहाँ पे 8 years कहा गया है, यहाँ पे 4 years कहा गया है। ओके, बाकी सारे कंडीशंस आपका सेम गिवन है। आई एम श्योर आप इसे ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। एंड योर नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन इज 9x by 7 minus 6x is equals to 15. Solve this equation for the value of x. Okay? So student, इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई एम श्योर आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यहीं पे फिनिश हो गया है। सो विल मीट इन अ नेक्स्ट क्लास विथ न्यू चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।